ऊपर ही बैठ जाओ। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शुरू करें? जी सर। हाँ, we are talking about the research methodology. In the case of the research methodology, the syllabus of the unit 1 is the meaning of a research problem, sources of the research problem, criteria, characteristics of a good research problem, errors in selecting a research problem, scope and objectives of the research problem, approaches of investigation of solution for the research problem, then data collection, data analysis, interpretation, and the necessary instruments are there. In this case, we will talk about the data collection, that how the data is collected in the case of the research, and this is the important issue for the any of the research, that how the data is collected. The two broad types of the evaluation methodology are the quantitative and the qualitative, that we have discussed in the last class. In this section, we talk more about the debate over the relative virtues of these approaches and discuss some of the advantage and disadvantage of different types of the instrument. In such a debate, two types of the issue are considered: theoretical and the practical. Theoretical issues are most of these center on one of the three topics: the value of the types of the data, the relative scientific rigor of the data, basic underlying philosophy of the evaluation, and the value of the data. Quantitative and the qualitative techniques provide a trade-off between the breadth and the depth, and between generality and targeting to the specific, sometimes very limited population. For example, a quantitative data collection methodology, such as a sample survey of the high school students or any of the college students also who participate in a special science enrichment program, can yield a representative and broadly generalizable information about the proportion of the participants who plan to major in science when they get to college, and how the proportion differs by the gender. But at best, the survey can elicit only a few of a superficial reason for these gender differences. On the other hand, separate focus groups, a qualitative techniques related to a group interview conducted with the small groups of the men and women students, will provide many more clues about gender differences in the choice of the science majors and the extent to which the special science program changed or reinforced attitude. The focus group technique is, however, limited in the extent to which the finding apply beyond the specific individuals included in the groups. Scientific rigor. Data collected through quantitative methods are often believed to be yield more objective and accurate information because they were collected using the standardized methods, can be replicated, and unlike qualitative data, can be analyzed using sophisticated statistical techniques. There are the many statistical software are there, statistical techniques are there by which the data is analyzed, and the all the data which is analyzed by the used by the statistical software, statistical quantitative methods, and can be analyzed using the sophisticated statistical techniques. In line with these arguments, traditional wisdom held the qualitative methods are more suitable for the formulative evaluation, whereas the summative evaluation require hard quantitative measures to judge the ultimate value of the project. The distinction is the too simplistic. Both approaches may or not satisfy the canons of the scientific rigor. Quantitative researchers are becoming increasingly aware that of the sum of their data may not be accurate and valid. And many of the data are not accurate and the valid. Hence, the validity test and accuracy test will be done on the case of the quantitative research on the data, because the survey respondents may not understand the meaning of the question to which they respond, and because people's recall of the events is often faulty. People's recall is often faulty. He has written there. Always in case of the
undeveloping country, when you take the data, they don't understand the data, they don't give the data, and the people's recall on events is often faulty. On the other hand, qualitative researchers have developed better technique for classifying and analyzing. Researchers have developed better techniques for classifying and analyzing large body of the descriptive data. It is also increasingly recognized that all data connection quantitative and the qualitative operates within a cultural context and is affected to some extent by the perception and beliefs of the investigation of the data collectors. Philosophical distinction. Researchers and scholars differ about the respective merits of the two approaches, largely because of the different view about the nature of the knowledge and how knowledge is the best acquired. Researchers and scholars differ about the respective merits of the two approaches, largely because of the different views about the nature of the knowledge and how knowledge is the best acquired. Qualitative researchers feel that there is no objective social reality and all knowledge is constructed by the observers who are the product of the traditions, belief, and the social political environment within which they operate. Quantitative researchers who have abandoned naive beliefs about the striving for absolute and objective truth in research continue to adhere to the scientific model and to develop increasingly sophisticated statistical technique to measure the social phenomena. The distinction affects the nature of the research design. According to its most orthodox practitioner, qualitative research does not start with clearly specific research question or hypothesis to be tested. Instead, questions are formulated after open-end field research has been completed. This approach is difficult for program and project evaluator to adopt, since scientific question about the effectiveness of the intervention being evaluated and expected to guide an evaluation. Some researchers have suggested that the distinction be made between the qualitative work and the qualitative work. Quantitative work involves participant observation and ethnographic fieldwork, whereas the qualitative work small refers to the often-ended data collection method such as in-depth interviews embedded in structured research. The latter are more likely to meet NSF evaluation needs. Practical issue. On the practical level, 4 issues can affect the choice of the method: credibility of the finding, staff skills, cost, and the time constant. These are the practical issues for the choice of the method. Credibility of the finding. Staff skills. Staff skill is that too much necessary in case of the any organization. Here in the case of the India, in almost all the industry, unskilled level is there. Staff skill and training is too much necessary and essential in any of the industry. Cost is required. Money is the one of the best factor. And the time constant. In the limited time, you have to be complete this one. Evaluation are designed for various audiences, including funding agency, policy makers in the government and the private agency, project staff and client researcher in academic and the apply setting, and various other stakeholders. Experienced evaluator now that they often deal with the skeptical audiences or stakeholders who seek to the discrete finding that are too critical or not all critical of a project's outcome. For this reason, the evaluation methodology may be rejected as unsound or weak for a specific case. The major stakeholders of the NSF projects are the policymaker within NSF and the federal government, state and the local officials and decision makers in the educational community where the project is located. In most cases, decision makers at the national level tend to favor quantitative information because these policy makers are accustomed to basing funding decision on the numbers of the statistical indicators. On the other hand, many stakeholders in the educational community are skeptical about the statistics and number crunching and consider the richer data obtained through the qualitative research to be more trustworthy and informative. A particular case
in point is the use of a traditional test result, a favorite outcome criterion for policymakers, school boards, and parents, but one that teachers and the school administration tend to discount as a poor tool for assessing true student learning. Staff skills. Qualitative methods, including in-depth interviewing, observation, and the use of the focus group, required good staff skills and considerable supervision to yield trustworthy data. Some quantitative research method can be mastered easily with the help of the simple training manuals. This is true of the small-scale self-administered questionnaire, in which the most question can be answered or yes, no check marks or the selecting numbers on a simple scale. Large scale, complex survey usually require more skilled personnel to design the instrument and to manage data collection and analysis. Cost is the major factor. It is difficult to generalize about the relative cost of the two methods. Much depends on the amount of the information needed, quality standards followed for the data collection, and the number of cases required for the reliability and validity. A short survey based on a small number of the cases, 25, 50, and consisting of a few easy questions would be inexpensive, but it also would provide only limited data. Even cheaper would be substituting a focus group session for a subset of the 25, 50 respondents. While this method might provide more interesting data, those data would be primarily useful for generating new hypotheses to be tested by more appropriate qualitative or quantitative method. To obtain robust finding, the cost of the data collection is bound to be high regardless of the method. Time constants. Similarly, data complexity and quality affect the time needed for the data collection and analysis. Although the technological innovation have shortened the time needed to process quantitative data, a good surveys require considerable time to create and pre-test question and to obtain high response rates. However, qualitative methods may be even more time consuming because the data collection, the data analysis overlap, and the process encourages the exploration of the new evaluation question. If insufficient time is allowed for the evaluation, it may be necessary to curtail the amount of the data to be collected or to cut short the analytic process thereby. Limiting the value of the finding for evaluation that operate under the CFR time constant, for example, where budgetary decisions depend on the findings, choosing the हाँ बोलिए सर टाइम कंस्ट्रेंट में टाइम बिल्कुल जो वैल्यू है टाइम की वो फिक्स रहेगी या उसमें चेंजेस भी रहेगा एज पर द जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं एक्चुअली दिस इज द कोई देयर इज द टाइम कांस्टेंट इज देयर कोई भी रिसर्च करते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स कि जो हमारा जो उसका क्या रिसर्च का कंक्लूजन है रिसर्च का फाइंडिंग है जल्दी से जल्दी मिल जाए है ना उसका टाइम लिमिट हाँ टाइम लिमिट देते हैं ना कि भाई आप जो है कॉस्ट इनकर्ड है टाइम ज्यादा बढ़ाएंगे रिसर्च में तो कॉस्ट लगेगा आपको मेन पावर लगेगा आपको जो है मशीन लगेगा आपको जो है डाटा एनालिसिस करेंगे तो कॉस्ट तो टाइम के साथ बढ़ेगा ना रिसर्च तो ऐसे होगा नहीं रिसर्च के लिए आपको हाँ रिसर्च के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा हाँ जैसे पीएचडी में भी क्या होता है ना वो टाइम स्केल बनाते हैं टाइम स्केल बनाते हैं कि आपको 1 मंथ में ये करना है 2 मंथ में ये करना है और 3 मंथ में ये करना है 4 मंथ में ये करना है और 6 मंथ के बाद आपको रिपोर्ट जमा होगा डिपार्टमेंट कमिटी में है ना टाइम कांस्टेंट ही देयर 6 मंथ में आपका रिपोर्ट जमा होगा कि इसको फिर आगे किया जाए कि नहीं किया जाए ओके वो टाइम फिक्स रहेगा कि इस टाइम में वो सबमिट करना ही करना है हाँ आपको टाइम कांस्टेंट आपको देना है कि आपको एक रिसर्च पेपर निकाले नहीं निकाले आपने कितना लिटरेचर रिव्यू किया वो टाइम कांस्टेंट आपको देगा ही देगा तभी बोर्ड उसकी बोर्ड होगी किसने कुछ करा नहीं करा सर ये एमटेक में हमें भी एक रिसर्च पेपर सबमिट करना पड़ेगा ना हाँ एमटेक में भी आपको एक रिसर्च पेपर आपको बनाना पड़ेगा बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ आप कोई टॉपिक ले लीजिए वो किस टॉपिक पे करना चाहिए सर उसपे
नहीं, आप डाटा जो है, आप कह रहे थे ना मैं कहीं काम कर रहा हूं। हाँ सर, मैं हिंद में काम कर रहा हूँ, हिंद हाइड्रोलिक्स में। हाँ, तो आप बेटर है कि वहीं का केस स्टडी बनाइए। आप कौन सा डिपार्टमेंट में हैं? सर मैं सेल्स में हूँ, मगर मैं एक तो मशीन मार्केटिंग का दे रहा बनाइए। हूँ मोल्ड। मार्केटिंग इज द वेरी गुड फील्ड। मार्केटिंग का जो मार्केटिंग कैसे जो है हिंद मोटर में है, हिंद हाइड्रोलिक्स। हिंद हाइड्रोलिक्स का जो जो मार्केटिंग है, कैसे जो है इंडिया में एक्सपेंड किया जाए, कैसे जो है कस्टमर को जो है अट्रैक्ट किया जाए, उसका प्रोडक्ट में फ्यूचर में क्या क्या बताया जाए, आप उसके क्या क्या आइटम है, जी। उसके क्या क्या आइटम बनाते हैं वो हिंद हाइड्रोलिक्स। एक्चुअली में क्या है ना सर, उनका कोई सेल्स का टीम है नहीं, मैं अकेला ही हूँ सेल्स में। हाँ, तो वही तो और बढ़िया है। आप सारा डाटा जो है, आप जो है कंपनी वाले को बुझिए, बोलिए कि हमें सारा डाटा दीजिए, और मैं आपका जो है यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। आप उसका ओनर जो है, ये प्राइवेट कंपनी है ना? जी सर। तो कौन ओनर है उसका? मिस्टर सुखदेव, सुखदेव सिंह। पंजाबी है क्या? हाँ जी, सरदार है सर। अच्छा, तो उनको बोलिए, वो सुखदेव डेटा सिंह तो जी को मिलता नहीं है बोलिए ना कि सर, डेटा। मार्केटिंग में रिसर्च करना चाह रहा हूं, और जो भी टूल वगैरह है वो आप डाटा प्रोवाइड कीजिए, और मैं जो है आपको जो है जितनी भी मार्केटिंग की जो टेक्निक्स है वो मैं आपको बताता हूं, और मार्केटिंग में ही आप कीजिए उसको रिसर्च। कैसे प्रोडक्ट या पोजिशनिंग किया जाए इंडिया में, कैसे प्राइसिंग डिसीजन किया जाए आइटम का, कई जो है मार्केटिंग रिसर्च है उसमें। नहीं, तो या तो आप, सर मैं एक मशीन मशीन के ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। वो तो फिर टेक्निकल हो गया ना। जी सर। मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं। मशीन क्योंकि का उसका वहां का जो प्रोडक्शन ब्रांच है वहां भी कर सकते हैं। पहले उसका वहां डाटा गैदर कीजिए। मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा काम है। उसमें कैसे जो है मार्केट सेगमेंटेशन किया जाए, कैसे किया जाए, इंडिया में कहाँ कहाँ उनका प्रोडक्ट जाता है, ये सारा उसका सप्लाई चेन को पकड़िए, जी सर। है ना? अच्छा, उसकी पूरी एक रिपोर्ट सबमिट होगी पूरी। हाँ, पूरा सबमिट होगी, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। ये इवन मैं आपकी कौन सा सेक्टर में है ये? ये सेक्टर 24। हाँ, तो सेक्टर 24 में मैं भी आ जाऊंगा, आपका कंपनी देख लूंगा, जो जो मेथोडोलॉजी है मैं भी आपको बता दूंगा। आप बोलिए उसको, जी सर। सुखदेव सिंह को बोलिए कि मैं जो है एमटेक कर रहा हूं, और जो है आपका जो है मैं सेल्स को इंक्रीज कर दूंगा। जी सर। मार्केटिंग में यही तो तो काम है। उनके सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हाँ, और क्या स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की। हाँ, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना। उसका प्रोडक्ट पोजीशनिंग डिसाइड कीजिए, उसका मार्केट डिसाइड कीजिए, कहाँ कहाँ जाता है, प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है कि नहीं है, मार्केट सेगमेंटेशन कीजिए। तो वो सारा चीज कीजिए जो मार्केटिंग का, तो आपको जो है बहुत फायदा होगा उसमें। सर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा हूँ, उनकी लेजर्स की, और एक मशीन है उनकी प्रेस ब्रेक मशीन। तो उसकी मार्केटिंग के लिए मैं रहूँ यहाँ पर। हाँ, तो उसको बताइए ना, बहुत सारे टेक्निक है, मार्केटिंग की बहुत सारी टेक्निक है। तो आप उसको मार्केटिंग को जो है इंप्रूव करने के लिए बताइए। फिर कभी मैं कल नहीं जी। तो बात करता हूं कि जो है मार्केटिंग की कौन कौन सी टेक्निक उसमें लगा सकते हैं, है ना? तो वो अच्छा काम है। सुखदेव सिंह को भी आपने बताया नहीं बताया कि मैं एमटेक कर रहा हूं? सर बताऊंगा ना, तो फिर वो एक्चुअली में क्या है ना, फिर वो थोड़ा सा उनका माइंड सेट जो है ना वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तब तब छोड़ दी, तब मत बताइए। तो हाँ, उनका थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा उनका, कि वो ये सोचेंगे कि ये हमारा काम कर नहीं रहा है और अपना एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। अच्छा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, तब मत बताइए। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ के ना सर उसकी मार्केटिंग की रिसर्च की एक पूरी फाइल तैयार करता हूँ। हाँ, आप कंपनी का पूरा जो है डाटा निकालिए। डाटा जो है पहले उसका देखिए, वहां पे प्रोडक्शन डिवीजन में कौन कौन सी मशीन है, कौन कौन सा वो क्या है, मार्केटिंग इंप्रूव हो जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग पे हमारे कई पेपर आए हुए हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में जी। कई पेपर्स हमारे आए हुए हैं। तो आपको उसमें प्रोजेक्ट करने में, आपको मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो है उसका ना? कोई सैंपल पेपर होगा सर, उसका कोई जैसे बनाना कैसे कैसे है, क्या उसका इंडेक्स कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बहुत सारे जो है, मैं आपको आप शुरू से ले लीजिए ना, एक प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, अभी से ही ले लीजिए, बढ़िया है वो। आपको करना है तो करना ही है। एक तो माइनर जी प्रोजेक्ट सर। होगा, दूसरा मेजर प्रोजेक्ट होगा, थर्ड सेम में माइनर जी सर। प्रोजेक्ट होगा, और फोर्थ सेम में कंप्लीट जो है मेजर प्रोजेक्ट होगा। तो आप जी। अभी से ले लीजिए, मार्केटिंग का ही ले लीजिए, उसका आप अपने कंपनी का ही ले लीजिए और वहां पर कीजिए, प्रोजेक्ट ले लिए। डाटा तो आप चूंकि काम कर रहे हैं तो डाटा तो आपके पास मिल जाएगा, डाटा की तो कोई वो कोई दिक्कत ही दिक्कत नहीं नहीं है। होगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मार्केटिंग का ही ना अच्छा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो जो है वो जी कहाँ कहाँ जो है उसका आइटम जाता है। सर, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया का उसका जो है मार्केटिंग को इम्प्रूव कीजिए, बाहर भी जो है उसको भेजने के लिए आप उसको जो है सजेस्ट कीजिए कि ये जो है आइटम को बाहर जो है उसको भेजा जाए, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया सर, ग्लोबली, वैसे ग्लोबली वर्क करते हैं हम उसमें, मार्केटिंग में। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ग्लोबली उसका जो वर्क करना पड़ेगा, और जो है उसका आइटम को जो है सेल्स को जो है कैसे कैसे बढ़ाया जाए, तो वो काम किया जाएगा वो, है ना। जी सर। तो तो मेरे को ना उसका टॉपिक है, टॉपिक मैं असाइन कर दूंगा, टॉपिक जो वो है मेरे को ना थोड़ा सा। जी। मार्केटिंग का ही मैं टॉपिक आपको आपको जो है मैं एक दो दिन में आपको आपको बता देता हूँ, मार्केटिंग का ही कर लीजिए, है ना, मार्केटिंग मार्केटिंग का में। अगर कोई टेक्निकल होगा तो सर उसमें भी कर लेंगे, क्योंकि कोई ऐसा कोई टेक्निकल में इश्यू है नहीं। हाँ, वहाँ नहीं पे वो डिजाइन आपके से रिलेटेड। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना दोनों चाह रहे चीज हैं, पे आप सर, क्या देखो करना चाह रहे लेबर हैं, तो। आप अपने प्लांट के क्वालिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने प्लांट का क्या करना चाह रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। मार्केटिंग का एरिया मजबूत करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको केस स्टडी कीजिए पहले, जी। है ना। कई पेपर्स है हमारे मार्केटिंग में, कई पेपर्स है हमारे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो है सारी तरह से मैं हेल्प कर दूंगा, है जी ना। सर। तो आपको आपको कितने एम्प्लॉई हैं उसको वहां पे। कैसे सर, स्टाफ में तो हम करीबन 20 और 25 की अप्रॉक्स हैं ट्वेंटी स्टाफ में। 25 है, नहीं ठीक है, मीडियम स्केल का है ये, मीडियम स्केल का है, जी। मीडियम जी। स्केल का है। और जो नीचे प्लांट्स के अंदर हैं, जो वर्कर्स हैं, हाँ, वो अप्रोक्सीमेट 50 और 80 के अप्रॉक्स हैं। 80 वर्कर्स हैं। हाँ जी। हाँ, तो नहीं ठीक है, वही तो मैं कहा ना कि वो मीडियम स्केल का है। कितने एकड़ में है ये। ये 1 एकड़ में बनी हुई है वो कंपनी। 1 एकड़ में बनी हुई है। हाँ, तो ठीक है, जी। वो मीडियम स्केल प्लांट है, अच्छा प्लांट है, मीडियम स्केल जी। प्लांट है, अच्छा प्लांट है। तो कई प्लांट में गया हुआ हूँ मैं फरीदाबाद में, गुड़गांव में, यही मेरा एरिया रहा हुआ है ना रिसर्च का। तो इंडिया के केस स्टडी भी मैंने कई प्लांट में किया हुआ है। तो जी। तो आप कीजिए, उसमें प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, कैसे बढ़ाया जाए प्लांट जी का सर। इफिशियंसी को बढ़ाइए, उसका जो है पहले प्लांट लेआउट आप पहले बनाइए उसका, पहले कंपनी को डिटेल से ना आप उसको स्टडी कीजिए। हिंद हाइड्रोलिक्स ओके। में जो 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 कंपनी है हिंद हाइड्रोलिक्स जो है, उसको डिटेल से पहले आप उसका डाटा आप पहले जैसे मैंने मेन पावर पूछा ना, तो उसी तरह आप जो है कितनी जी। मशीनरी है वो आप कलेक्ट कीजिए, क्या बनाती है, क्या उसका प्रोडक्ट फ्लो है, क्या उसका प्लांट लेआउट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, है ना, कौन कौन से जी डिपार्टमेंट सर। हैं। पहले उसको आप जो है आप उसको बनाइए, हिंद हाइड्रोलिक्स का कंपनी का जो है पहले आप प्रोफाइल रेडी कीजिए, कंपनी का जो हिस्ट्री है ना उसको रेडी कीजिए, कंपनी का जी सर। क्या हिस्ट्री है, कब शुरू हुआ था, उसके बाद उसने क्या क्या लगाया, कंपनी का प्रोफाइल पहले बनाइए, वो कैसे कैसे बढ़ा, और फिर जो है इस स्टेज में कहां तक आया, कंपनी का डिटेल जो है लेआउट जो है आप उसका बनाइए, ये ठीक है, राइट सर। आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं हर तरह से आपका हेल्प कर दूंगा, यही तो जरूरी है। जी आप सर, केस वो स्टडी एक। जो है हाँ।
केस स्टडी आप अच्छा से कीजिए। ये केस स्टडी हमारे बहुत किए हुए हैं, मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है पर आप आपको तो अगर ये कोई नया मेजर। प्रोडक्ट लंच करना चाह रहे हैं आपके आपकी कंपनी, तो उसमें भी उसको हेल्प कीजिए। हम्म। नया प्रोडक्ट कोई लंच करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट इनोवेशन करना चाह रहे हैं, प्रोसेस में इनोवेशन करना चाह रहे हैं, कुछ नया जो है करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है आप उसको हेल्प कीजिए। एक नई नई एक प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है सर, एक हाँ 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 हाँ, वही तो मैं कह लेदर रहा की हूँ। प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। मैं भी तो वही आपको कह रहा हूँ कि अगर नया प्रोडक्ट पोजीशन करना चाह रहे हैं, नई मशीनरी लगाना चाह रहे, नया वेंचर क्रिएशन करना चाह रहे, तो आप उसका पहले आप कंपनी का पूरा केस स्टडी बनाइए। जी सर। हाँ, कंपनी का पूरा केस स्टडी बनाइए, वो आपको काफी हेल्पफुल होगा वो। जी सर। हाँ, कंपनी का जो है आप उसका केस स्टडी बनाएंगे तो काफी जो है हेल्पफुल होगा। क्या क्या प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी को आप इंक्रीज कीजिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी को बनाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप इंक्रीज कीजिए, है ना। कई जी सर। क्वालिटी के टूल हैं, उसको अपनाइए, है ना, प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो जी सर। हाँ, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। ये आप अभी मेजर प्रोजेक्ट में काउंट होगा ना सर ये? हाँ, मेजर प्रोजेक्ट में तो आपको एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। माइनर प्रोजेक्ट में आपको माइनर प्रोजेक्ट को ही आपको मेजर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। माइनर प्रोजेक्ट कीजिएगा ना, ओके। कंपनी के ऊपर में ही कीजिएगा, तो उसी जी को सर। मेजर प्रोजेक्ट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ओके। वहीं पे आप जो है आप एक रिसर्च पेपर लिख डालिएगा। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ओके। जी सर। केस स्टडी वगैरह ना जल्दी पब्लिश हो जाते हैं। किसी कंपनी का जो केस स्टडी है, केस स्टडी बहुत जल्दी पब्लिश हो जाते हैं। ओके। हाँ, केस स्टडी बहुत जल्दी पब्लिश हो जाते हैं, और वो आसानी से पब्लिश हो जाते हैं केस स्टडी। नहीं, कंपनी को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होती ना सर कि हमारे बिना पूछे आपने ये हमारी कंपनी के बारे में क्यों पब्लिश किया कुछ? नहीं तो आप कंपनी का नाम नहीं दीजिएगा, XYZ कंपनी कर दीजिएगा। ओके। हाँ, जनरली यही करते हैं कि डाटा ऑफ एनोनिमस कंपनी जो है कर देते हैं वो। अरे, ये आपकी जो हाइड्रोलिक्स बनाती है, ये आइटम बनाती है, तो आपकी कंपनी सिर्फ थोड़ी होगी, और भी तो इंडिया में कंपनी होगी। नहीं, मगर कंपनी की हिस्ट्री डालूंगा तो पता लग ही जाएगा सर। नहीं नहीं, ऐसा पता नहीं चलेगा। ओके। बहुत सारी कंपनियां होगी ना कि ये आइटम आपका इंडिया में और भी बनाती होगी। पहले बात को समझिए, ओके। और भी कंपनियां बनाती होगी। तो जी सर। आप डाटा आप उसको गेन कीजिएगा तो आपको भी हेल्प करेगा। आप जो डाटा नहीं पब्लिश करना चाह रहे हैं उसको मत पब्लिश कीजिए, जी सर। है ना। जो नहीं पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसको मत पब्लिश कीजिए। तो कंपनी का जो प्रोफाइल तो आपको जानना पड़ेगा ना, वहां पे क्या प्रोडक्ट बनाती है, वो तो मार्केटिंग हो गया ना। आप सुनिए, किसी कंपनी का आप ये करते हैं कि ये कंपनी ये बनाती है ना, उसके प्रोडक्ट जी के सर। बारे में बताते हैं, वो पब्लिश करते हैं, वो तो और जी। एडवर्टाइजिंग हो गया ना। जी सर। पहले बात को समझिए, कंपनी का जो है, आप क्या, मैं आपको आपको फाइनेंस के बारे में तो नहीं पूछ रहा हूं। नहीं सर। हाँ, तो आपको कह रहे हैं कि जो भाई आप क्या क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने उसको पेपर बना के इंटरनेशनल जर्नल में छपवा दिया, वो तो और आपका एडवर्टाइजिंग हो गया वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड लेवल में जी कि सर। ये कंपनी है, ये आइटम बनाती है ना। तो उसका उसकी क्वालिटी बढ़िया है, उसकी ये चीज सारी अच्छा है, तो वो तो और पब्लिसिटी हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, वो तो और आपको मजबूत करेगा कंपनी को। जी सर। तब वो तो एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्च जो है लगता है। एक पेपर में आप छपवाने जाएं, थोड़ा सा जो है एड छपवाने जाएं, वो लाख रुपये मांगता है। वो तो मांगता है सर। हाँ, तब और आपका जर्नल में कोई छप जाएगा तो वो वर्ल्ड वाइड जो है आपको आपको आपकी थोड़ी सी मेहनत से आपको वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। बात को समझिए।
आप जी थोड़ा सा सर। आइटम जो है, ये 2 कॉलम का, आप बोलिए ना कि पेपर वाले को छाप दो मेरा, देखो चार्ज करता है कि नहीं करता है, वो वर्ड काउंट करेगा, ये करेगा, उसके बाद जो है आपको आपको पैसे बता देगा। मोटा बात नहीं खर्चा समझ में बताएगा सर, बहुत है। बहुत मोटा खर्चा बता देगा वो भी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। वो भी लोकल न्यूज़पेपर में, वो भी लोकल जी सर। न्यूज़पेपर में क्या का मैं बता रहा हूं। अच्छा, केस स्टडी सर ये मतलब कोई पढ़ता भी है या फिर ऐसे ही बस नहीं नहीं, जो इंटरनेशनल जर्नल में जो छप जाते हैं ना, तो उसका जी सर। वर्ल्ड वाइड नाम हो जाता है, उसका ग्लोबली नाम हो जाता है उसका। कोई भी आपका गूगल में आ गया तो उसका ग्लोबली नाम हो जाता है उसका। हाँ, ओके। ये कंपनी का, आपकी कंपनी का जर्नल में छप जाएगा तो नाम नहीं हो जाएगा। जनरली कहाँ छपता है? इंडिया की कोई कंपनी का मैं बहुत कम देखता हूँ। जनरली जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फोर्ड की केस स्टडी देखिए, बहुत पड़ा हुआ है आपको नेट पे। फोर्ड का, जी सैमसंग सर। का, ये सब का बहुत जो है केस स्टडी पड़ा हुआ है। यूनिलीवर का, जी सर। यूनिलीवर का बहुत ज्यादा केस स्टडी आपको पड़ा हुआ है। जब तक कि पब्लिक जानेगी नहीं तो आइटम खरीदेगी कैसे? जी सर। हाँ, तो आपको मैं फाइनेंस का डाटा थोड़ी बोल रहा हूँ छापने के लिए, आपको तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। बात है नहीं समझ में? वो अगर पेपर में जी छप जाता है तो और जो है उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, उसकी और मार्केटिंग होगी वर्ल्ड लेवल में, और भी जो जो नहीं जानेगा वहां से भी उसका और ऑर्डर आने लगेगा। जी। वर्ल्ड लेवल का काम हो गया ना वो। राइट सर, राइट। तो वर्ल्ड के जो है जो कंपनियां, उसके जो क्लाइंट्स हैं, उसके क्लाइंट्स जो है, आपका एक पेपर छप जाने से क्लाइंट बढ़ जाएगा उसका। तब जी सर। तब तो मगर मार्केटिंग सर एमटेक में होता है मार्केटिंग पे, या एमबीए में होता है वो तो? देखिए, एमटेक में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आता है मार्केटिंग जो है ना। मैकेनिकल में भी जो है, जी। मैं मैकेनिकल में भी एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, वो एमबीए का होता है। और प्रोग्राम इलेक्टिव होता है सब्जेक्ट, वो जो है होता है। मार्केटिंग तो एमबीए में है ही, बीबीए में है ही। जी। ये जो है जी। आपको मैनेजरियल जॉब है ये। मार्केटिंग का जो केस है वो मैनेजरियल जॉब है। तो ये जी एक सर। अच्छा जॉब है। ये मैनेजमेंट का तो है ही इशू, जो हाउ टू मैनेज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे जो है जी। मैनेज किया जाए। बात है नहीं समझ में? ये तो मैनेजरियल इशू राइट है सर। ही। मैं एमबीए का तो है ही, लेकिन आप जो है उसका थोड़ा टेक्निकल डाटा भी उसमें आप लगा दीजिए, कोई मशीन का मॉडिफिकेशन कर दीजिए, कोई मशीन बना दीजिए, तो वो भी आपको जो है आपको हेल्प करेगा। कोई कुछ पेटेंट बना लीजिए, जी सर। पेटेंट करके इस सब्जेक्ट में आपको यूनिट 4 में, 5 में, 6 में पेटेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। तो किसी चीज का राइट। पेटेंट बना दीजिए तो आपको इंडस्ट्री वाले बहुत हेल्प करेंगे कि मैंने पेटेंट बना दिया है। ओके। पेटेंट बना दिया है तो उसका जो है कंपनी वाले हेल्प करेंगे। जी सर। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा वो। मतलब मार्केटिंग करना था मेरे को, एक बार भेजना सर आपके पास, जो है ना तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस लेवल पे करना है, कैसे करना है, ताकि उस हम्म। पर मैं वर्किंग स्टार्ट कर दूं आज से ना। हाँ, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल क्योंकि स्टार्ट कर दीजिए। वो देना भी जरूरी है सर, जो हाँ, देना प्रोजेक्ट तो होगा। जरूरी है, देना कंपलसरी है, जी। देना जरूरी है, कंपलसरी है वो। वो सब किसी मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम पे भी कर सकते हैं। मशीन के ऊपर कोई पर्टिकुलर हाँ मशीन है, हाँ, बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल। उसका उसका क्या डिजाइन है, हाँ, और बिल्कुल क्या बिल्कुल उसका बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल हाँ, इलेक्ट्रिक बिल्कुल। है, सब कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल स्पेशलाइज मशीन पे वो कर सकते हैं। वो आपके यहाँ ज्यादातर स्पेशलाइज मशीनें होंगी ये। नहीं, लेदर मशीन के ऊपर है सर, हमारी लेदर एक मशीन है, हाँ तो हाँ उसमें मैं शायद करूँ लेदर मशीन या प्रेस ब्रेक मशीन के ऊपर। हाँ, तो उसी पे कर लीजिए, लेजर मशीन पे ही कर लीजिए। ये कहाँ से लाया है वो मशीन? जर्मनी से? नहीं, वो मशीन सर, एक मशीन तो उन्होंने पुणे से ली है, हाँ, और पहले एक मशीन चाइना से लेके आए थे। चाइना से लेके आए हैं।
हाँ तो उसी पे कर लीजिए, आप मशीन के बारे में कर लीजिए, मशीनिंग के आप उसी मशीन पे कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। तो मशीन का स्टडी बहुत है सर उसका। हाँ 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 तो हाँ ठीक है, वो लेजर मशीन है, वो उस पर निकल जाएगा, आपका आपका प्रोजेक्ट निकल जाएगा। कई उसमें जी टेबल जी। बना लीजिएगा मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का, और उसमें जो जो पैरामीटर्स है, प्रोसेस पैरामीटर्स है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, कई कई मेथड्स भी लगा सकते हैं, और कई वेरिएबल्स लगा के ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, उस मशीन पे भी कर सकते हैं आप। बढ़िया है वो, है ना। उस मशीन पे भी आप कर सकते हैं। बेटर है उसी मशीन पे आप कीजिए, है ना। जी सर। हाँ उसी मशीन पे कीजिए, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उसके सारे जो है प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या है, कैसे हम्म। काम करता है, उस पे सारा जो है आप कीजिए। ठीक है सर। उसमें कोई कंपनी का प्रोफाइल तो देने की जरूरत नहीं है सर नहीं, उसमें? तब तो फिर कंपनी का प्रोफाइल कुछ देने का जरूरत नहीं है। आप उस मशीन का बताइए कि वो कौन सी मशीन है, और उसी मशीन पे जो है लिटरेचर सर्च करके, और उसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए उस मशीन का। कंपनी का फिर जी कहाँ सर। कुछ देने का जरूरी है। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर और जो उसके पैरामीटर्स हैं वो सारी चीजें हाँ उसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंशन करनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जी ठीक है सर। फिर आज आज खत्म करते हैं लेक्चर यहीं पे। सर क्वालिटी मैनेजमेंट का कुछ अटेंडेंस लगा देंगे क्या, अगर पॉसिबल रहा तो? नहीं सुबह का ना। जी सर। हाँ 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 मैं लगा दूंगा आपका लगा ठीक है दूंगा। सर। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर।